پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ جلال کے بادشاہ، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کے مبارک، جلالی، پوتر اور قدرت والے نام میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ شکر کرتا ہوں خداوند کا کہ آج پھر بطور بانس میری زندگی میں یہ لمحات خداوند نے بخشے ہیں کہ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر کی جانے والی خداوند کی پرستش اور دعاؤں کے ذریعہ سے میں مبارک ٹھہرنے والا ہوں، اور اب زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے چونکہ میں آلریڈی دوران اسٹڈی برکت پایا، مبارک ٹھہرا، اس لیے اب میں آپ کے لیے بھی برکت کا سبب ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا کے لوگوں، اب آپ کسی اور کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں، یہی وہ تعلیم ہے جو کلام مقدس میں میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ آج آپ کے ساتھ مل کر زبور 109 اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 20 آیت تک اسٹڈی کروں گا، مطالعہ کروں گا۔ ان آیات میں، بلکہ اس پورے زبور میں، بزرگ داؤد بادشاہ یا داؤد نبی کی ایک دعا ہے، اور یاد کیجئے یہ عہد عتیق کی بات ہو رہی ہے۔ زبور کی کتاب عہد عتیق میں ہے، اور جو دعا کی جا رہی ہے وہ خدا کے حضور ہے۔ اور اس دعا میں ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ دعا بد دعا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کئی ایک مزامیر میں سے ایک زبور ہے جن میں دشمنوں کی تباہی کے لیے اور تباہ حالی کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بد دعا، یہ بد دعا کی جا رہی ہے۔ لیکن داؤد بذات خود اپنے دشمنوں کا حال تباہ کرنے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یوں لگتا ہے کہ بزرگ داؤد یہوہ خدا کے حضور اپنی بینتی اور اپنی فریاد کرتے ہیں کہ اے خدا، آپ میرے ان دشمنوں کے ساتھ دو ہاتھ کیجئے، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا یہ زبور چند ایک اور مزامیر میں سے ایک زبور ہے جس میں 5 زبور بھی، 10 بھی، 37 زبور بہت معروف، اس سے بھی سخت باتیں ہمیں 37 میں ملتی ہیں۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اس کو بددعا کے طور پر شاید لے سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ ان چند مزامیر میں سے ایک زبور ہے جس میں دشمنوں کی تباہی کے لیے، خواہ وہ اخیتوفل تھا، خواہ وہ ابی سلوم تھا، خواہ وہ سعود بادشاہ تھا، خواہ فلسطی تھے، یا جو بھی داؤد کی جان کے خواہاں،
उन तमाम के लिए दाऊद दुआ कर रहे हैं खुदा के हुजूर के, ए खुदा आप मेरा बदला लीजिए। और अहदे अतीक में अदले के बदले की तालीम हमें मिलती है। हमने पहली 13 आयात में बहुत कुछ देखा है ऑलरेडी। मैं उन आयात की तरफ नहीं जाऊंगा। पूरे जबूर के बारे में जो खुलासा था वो मैंने बयान कर दिया, लेकिन गौर करना है कि ये मीरे मुगन्नी जो क्वायर के डायरेक्टर थे, उनके लिए ये जबूर लिखा गया कि वो इसको गाएं। और कई आलम लोगों का ख्याल है कि परस्तश और स्ताइश और हम्द के लायक खुदाबंद खुदा है, और ये उसके लिए जबूर है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस जबूर में खुदा से डायरेक्ट बात की जाती है। अहदे अतीक में यहोवा खुदा के नाम से उसे हम जानते हैं। सवाल यह है कि क्या हम दूसरों के लिए जो हमें सताते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, बदगोई करते हैं, ऐबजोई करते हैं, जेलसी और हसद रखते हैं, कुदूरत उनके दिलों में है, मक्खन नालू मुंह है कूला ते दिल विच भरी बुराई, क्या हम उनके लिए भी बद्दुआ करें? जवाब आपके पास होगा। लेकिन आज इसी बात पर तो हम गौर खोज कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या सबक है। और बाय द वे, अगर मैं आपकी आवाज सुन पाऊं, वैसे मुझे आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर मैं आपकी आवाज सुन पाऊं कि क्या हम अपने सताने वालों, नफरत करने वाले, कदूरत रखने वाले, जेलसी, दुश्मन, उनके बरखिलाफ बद्दुआ करें? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, नहीं। लेकिन देखना यह है कि क्या हम अपनी सोच और अपने ख्याल और अपनी नीयत और इरादे में सचमुच अपने दुश्मन का बेड़ा गर्क होता हुआ नहीं देखना चाहते? अपने आप दे नाल हनेस्ट हो जाओ, दयानतदार, सच्ची सच्ची अपने आप ਨੂੰ दसो। कहीं दिल में से ये आवाज तो नहीं निकलती, इन्हें साढ़े नाल कीता है ना, ते एदे नाल भी इंजी होएगा। ओ जी रब वहीदा है, इंजी होएगा। और अगर किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो हम ही और तालियां बजाते हैं, वेख्या जे। ये हमारा रवैया है। हम सब एक ही बेड़ी के सवार हैं। हम सब का एटीट्यूड और रवैया यही है। मुंह से कहेंगे नहीं 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 नहीं, ओ जी यसू ने आख्या सी माफ करो, लेकिन दिलों असी माफ करने आ कि नहीं? ए बड़ी मुश्किल जी गल है अपने आप से पूछने के लिए, सोचना है। दाऊद की ये तमन्ना थी कि ये जो मेरे दुश्मन है वो तबाह हाल हों, लेकिन मैंने कहा कि वो खुद ऐसा नहीं करते, यानी दाऊद, बल्कि इस सारे मामले को वो खुदा के हुजूर सौंप देते हैं। हम ये कहते हैं, हम से मुराद अहले कलीसा, कि हम फजल के दौर में हैं, और इस फजल के दौर में
हम कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि किसी के लिए बद दुआ करें। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, इसी तरह से ही है। लेकिन क्या फिर हम अपने दुश्मनों की भलाई चाहते हैं? उनके लिए बेहतरी के ख्वाह हैं? या हमारा एटीट्यूड और हमारा रवैया इसकी बाबत क्या कहता है? देखिए आयत 14, जिसमें यूं लिखा हुआ है, ज़बूर 109 की 14, उसके बाप दादा की बदी खुदाबंद के हुजूर याद रहे और उसकी मां का गुनाह मिटाया ना जाए। दाऊद खुदा से बात कर रहे हैं और अपने दुश्मन की बाबत खा कोई भी क्यों नहीं था, यूं दुआ करते हैं खुदा के हुजूर, ऐ खुदा उसका गुनाह कायम रहे पुश्त दर पुश्त, जैसा अहदे अतीक में लिखा हुआ है। उसके बाप दादा की बदी, उनका भी गुनाह खुदाबंद के हुजूर याद रहे, मिटाया ना जाए, और उसकी मां का गुनाह भी मिटाया ना जाए, जो मादरी तौर पर गुनाह मंसूब हुआ है वो भी वैसा ही रहे। ये दुआ हो रही है अहदे अतीक में, यानी खुदा से बात हो रही है। शायद इस आयत को देखते हुए हमें मायूब लग रहा हो कि बुजुर्ग दाऊद किस तरह से दुआ करते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा जरा अपने आप की बाबत भी हमें सोचना है कि हम क्या करते हैं। देखिए, खुदा का कलाम जनरली मैं यूं कहूंगा कि खुदा की बाबत बताता है कि खुदा कैसा है और हमसे क्या चाहता है। लेकिन ज़बूर की किताब हमारी बाबत बताती है, हमारी सोचों, ख्यालों, नियतों, इरादों, करदार, रवैया, चाल चलन, तर्ज हयात, गुफ्तगू से मुताल्लिक ये ज़बूर की किताब हमारी अक्कासी करती है। और जैसे मैंने पहले कहा, ओ जी इस ज़बूर में बद्दुआ है जी, और जी इसके अलावा क्या है जी, कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, खुदा ने इस ज़बूर को और इससे ममासलत रखते हुए दीगर मज़ामीर को ऐसे ही 150 मज़ामीर में शामिल नहीं किया। उसके पीछे कोई खास रीजन था। खुदा से बड़ा हकीम यानी दाना और फहीम कोई नहीं है, और वो जानता था और जानता है कि मुझे और आपको भी इस ज़बूर के आईने में अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। यह बड़ी अहम तरीन बात है। और आयत 15, वो बराबर खुदाबंद के सामने रहें, क्या? पाप और गुनाह जो मेरे दुश्मन ने और उसके आबाओ अजदाद ने किए हैं, वो बराबर खुदाबंद के सामने रहें, ताकि वो जमीन पर से उनका जिक्र मिटा डाले, उन लोगों का। शायद लगता है कि सदूम और अमूरा के लोगों की तरह दाऊद सोचता हुआ होगा, या बुजुर्ग नूह के वक्त के लोगों की बाबत, या उनकी बाबत जिनको जमीन ने मुंह खोला और हड़प करके खा गई। सोचता होगा कि उनके जिक्र तक
खत्म हो गया। क्या उनके नाम थे, क्या नहीं था, सब खत्म हो गए। और बुजुर्ग दाऊद यहां पर यूं ही कहते हैं कि ऐ खुदा उनका गुनाह आपके सामने रहे और मेरे दुश्मनों का आइंदा के लिए जिक्र तक ना हो। क्या हम भी ऐसी ही सोच रखते हैं या अपने दुश्मनों के लिए कोई एहसास, तरस, रहम और मोहब्बत का और कोई एहसास का कूना बाकी है? सोचना है। मैं बार बार कहता हूं 2021 में, इन सालों में और इवन आइंदा आने वाले सालों में खुदा के कलाम का कहत नहीं है। खुदा के कलाम की मनादी हवा की लहरों पर हो रही है। आप कहां बैठे हैं, मैं कहां बैठा हूं, लेकिन हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। इवन आप में से कई अपने बेडरूम्स में बैठकर इस लाइव प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और स्काइप आईडी पर सुन रहे हैं। इवन कई गैर मसीही लोग भी इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं। मज़ाहिब में मनादी बहुत है, प्रचार बहुत है, तबलीग बहुत है, प्रीचिंग बहुत है, लेकिन मुझे वो बात याद आ रही है जो आज हम पर फिट आ रही है कि इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल ओहो मुझसे दूर है। और अहद जदीद में ये दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन इसके असर को कबूल ना करेंगे। जनरली देखें तो क्या आज यही कुछ नहीं है? कलीसिया की जड़ें खोखली हो चुकी हैं। हमारी चीरा फाड़ी के एतबार से, एक दूसरे से नफरतों और कदूरतों के सबब से, बदबुरियां करने के सबब से, पैसे के पुत्र होने के सबब से और प्रॉपर्टीज ऑनर होने के एतबार से, अपना बैंक बैलेंस बनाने के सबब से हमें एक दूसरे का कोई एहसास नहीं है जैसे होना चाहिए। यूनिटी नाम की कोई चीज आज कलीसिया में नहीं, उसका शिराजा बिखर गया है। मुझ पर और फतवे देना चाहें तो दे दें, लेकिन अगर यही हालत कलीसिया की रही तो हम ज्यादा देर के लिए कायम नहीं रहेंगे। मेरे हालेलुया के चीखो पुकार करके नारे मारने से कख भी नहीं बनेगा जे, जब तक हम अपने आप को सही खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक बना नहीं लेंगे। तो समझना है इस बात को। हम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते, शो डालते हैं, ओ जी ओ साडे नू लै गया, ओ साडी नू लै गया, ओ साडी नू लै गया। हुकूमतें नहीं सुनेगी। अगर हम टोले टोले की सूरत में होंगे तो नहीं, मारे जाएंगे। खुदावंद चाहते हैं कि हम में यूनिटी और इत्तेफाक हो और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हों। यह खुदा के कलाम की बात है। देयर इज पॉसिबिलिटी। अदरवाइज जो कुछ दाऊद तजुर्बा कर रहे थे, सेम वही बातें आज
हमें नजर आती है हमारी अपनी जिंदगी में। आयत 16, इसलिए कि उसने रहम करना याद ना रखा। दुश्मन ने रहम करना याद नहीं रखा, जानता ही नहीं कि रहम करना क्या है। पर गरीब और मोहताज और शिकस्ता दिल को सताया ताकि उनको मार डाले। मैं समझता हूं कि इस आयत में दुश्मन ने रहम और तरस को पहचाना ही नहीं कि वो क्या है, और गरीब और मोहताज को शिकस्ता दिल कर दिया, तोड़ डाला, इसलिए कि उनका अठिया नाश हो जाए, तबाह हो जाए, फना हो जाए। दुश्मन ये चाहता है, और यूं लगता है, वैसे भी दौरान स्टडी मैंने देखा कि इस आयत में बुजुर्ग दाऊद गोया अपने आप को पेश कर रहे थे, अपनी बाबत बात कर रहे थे, और वो कहते थे, मैं गरीब, मैं मोहताज, मैं वो शख्स हूं जो शिकस्ता दिल हूं, और मुझे सताया जा रहा है, और मेरे लिए मेरे दुश्मन ये सोचते हैं कि मुझे मार डालें और बिल्कुल खत्म कर डालें। और मैं समझता हूं कि दुश्मन ने हमेशा से मोहब्बत के बजाय नफरत ही की है, लेकिन बहुत कुछ सीखने का भी इत्तेफाक होता है। मैं ज़बूर 34 में जब जाता हूं तो उसकी 18 आयत हमें बहुत इनकरेज करती है शिकस्ता दिल होने के ताल्लुक से। खुदाबंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने को, लेकिन इब्ने खुदा आया हमें बचाने और गुनाहों के मुआफ करने और जिंदगी देने के लिए। और वो जो शिकस्ता दिल और शिकस्ता हाल खुदा के हुजूर हैं, खुदा उनकी बाबत लिखा है कि उनके करीब और उनके नजदीक है। और फिर ज़बूर 51 इस 51 ज़बूर की 17 आयत में लिखा है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। यानी वो जो खुदा के हुजूर अपने आप को तोड़ने के लिए, छोटा बनने के लिए, हलीम और फरोतन बनने के लिए, कि खुदा इन पीसीस को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए और ये पजल एक अच्छी पिक्चर बन जाए, उन लोगों की बाबत लिखा है। खुदा उनके नजदीक है और खुदा उन लोगों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देता, उनको जवाब देता है। अगर आप और मैं आज खुदा के हुजूर शिकस्ता हाल हो जाए, खुद अपने आप को हलीम और फरोतन बनाए, तो खुदा हमें सरफराजी की तरफ ले जाएगा। और यह भी पॉसिबल है कि हम में से बहुतों की सरफराजी के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह पॉसिबल है, एक वजह यह कि हमने अपने आप को शिकस्ता दिल नहीं किया, यानी खुदा के हुजूर अपने आप को हलीम और फरोतन नहीं किया। आयत 17, बल्कि लानत करना उसे पसंद था, यानी दुश्मन को लानत करना पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी
और दुआ देना उसे मरगूब ना था, मरगूब यानी दिल पसंद, सो वो उससे दूर रही। दुश्मन के बारे में कि उसको पसंद था कि वो लानत करता रहे और वो लानत उस पर आ पड़ी। दुआ देना उसको पसंद नहीं था, लिहाजा दुआ देना उससे दूर ही रहा है, क्योंकि वो दूसरों के लिए वैसा नहीं चाहता था जिस सबब से उसके लिए भी वैसा नहीं हुआ। और मेरे और आपके निजात दहंदा, मुनज्जी आलमीन, बादशाहों के बादशाह, खुदाबंदू के खुदाबंद, तबीब आजम, तबीब लासानी, सबसे बड़े रब्बी और उस्ताद क्या तालीम देते हैं? मत्ती की इंजील 5, 6 और 7 अबवाब जो पहाड़ी वाज है, आपने फरमाया जो तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम उनके साथ वैसा ही करो, यानी भला। आपकी तालीम क्लियरली हमें नजर आती है कि अगलों से कहा गया था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुझसे यह कहता हूं बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, इसको ऊपर वाले के सुपुर्द कर दो, वो बदला लेना जानता है। हमने माजी में कितनी बार ऐसा किया, जनु ऐसी जनुआ तले ले आ सकने सा ओदी ऐसी ऐसी तैसी कीती होएगी, ते जिड़ा जोर आवर सी ओदे बाबत आख्या होना ओनू खुदा ही पूछेगा, इंजी नहीं होता। जरा सोचना है। आयत 18 कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना। ओ हो, ओढ़ना बछूना लानत के तहत ही, और वो पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। बाज़ोकात जब शोबाए तिब के पास जाते हैं तो जो तिबी माहिरीन, आप में से कई लैब्स से और कई ओटी से ताल्लुक रखते हैं या मुख्तलिफ तरह से जानते हैं, तेल अगर हमारी एक्सरसाइज ना हो तो हमारे बदन में जो पाइप्स हैं उनकी वाल्स के साथ वो तेल या चर्बी या घी जम जाता है और हमारे पंपिंग सिस्टम में रुकावट का सबब बनता है। यही तो बात यहां लिखी है। ओ जी ओदे जोड़ा च पानी पै गया, सुना है ना कभी कभी। यही बात यहां पर हमें नजर आ रही है। उसकी लानत को अपनी पोशाक की तरह उसने पहना और वो पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। लानत अंदर बाहर, लानत ही लानत हमें नजर आती है। आए हम दूसरों की लानतों को नहीं बल्कि उनकी जो खूबियां हैं हम उन खूबियों की तरफ देखने वाले हों और उन खूबियों के लिए खुदावंद की तारीफ करने वाले हों। नेगेटिव मनफी स्पिरिट अपने आप से हम दूर करने वाले और खुदावंद को अपनी जिंदगी में जलाल देने वाले हों। आयत 19, वो उसके लिए उस पोशाक की मानिद हो जिसे वो पहनता है। दाऊद की दुआ है
दुश्मन की तबाहाली के लिए कि वो लानत उसका पोशाक की तरह ओढ़ना, बचूना, पहनना हो जाए, इसी तरह रहे। और उस पटके की जगह जिससे वो अपनी कमर कैसे रहता है, अब पटके की जरूरत नहीं, लानत ही इसके नाम से मंसूब हो जो मेरा दुश्मन है। क्या हम लानत के लिए बुलाए गए? अहद जदीद में हमें कहा गया कि तुम लानत के लिए नहीं, बरकत के लिए बुलाए गए हो। बस लाजिम है कि हम दूसरों के लिए बरकत चाहें। यह अहद अतीक की उस वक्त की तालीम है जब खुदावंद यीशु मसीह अभी नहीं आए थे फिजिकली, स्क्रीन पर आकर उन्होंने टीच नहीं किया था अभी तक, और पहाड़ी वाज की तालीम उस वक्त थी नहीं, जिस सबब से ये दुआ की जा रही है। और आयत 20 में लिखा है, खुदावंद की तरफ से मेरे मखालफों का और मेरी जान को बुरा कहने वालों का यही बदला है कि लानत ही लानत उनसे मंसूब हो जो मेरा बुरा चाहते हैं, उनके साथ ऐसा ही हो, उनके अबौ अजदाद का गुनाह उनके हिसाब में आ जाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मुझे भी और आपको भी अपने आप पर सोचना है कि अहद जदीद में होना, फजल के दौर में होना, मसीह के पैरोकार होना बहुत आजाज और शर्फ की बात है। लेकिन क्या वो तालीम जो खुदावन ने हमें दी है, उसकी अक्कासी हमारी अपनी जिंदगी से होती है कि नहीं? क्या हम वाकई दूसरों को मुआफ करते हैं और फिर दुआए रब्बानी पढ़ते हैं, जैसे मैंने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी मेरे कर्ज मुझे मुआफ कर? उत्थे ते साफ असी कसूर कहने, कर्ज नहीं कहेंगे। जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, वैसे ही तू हमारे कसूर हमें माफ कर। सदके जावा जे कदी इंज करदा होए तो भलिया का। यही टीका आज मेरे लिए और आपके लिए रूहानी तौर पर काफी है। हम दुआ करें। कादिर मुतलक, अर्जो समा के खालिक और मालिक, शुक्र करते हैं कि इस कलाम के आईने में हम तोले जाते। पाक रूह हम पर हमारी कमियों और कमजोरियों के सिवा और कुछ जाहिर नहीं करता। खुदाबंद हमारी रियाकारी की रूह को और मुनाफिकाना रूह को मुआफ कीजिए और मुमकिन कीजिए कि हम आपकी तालीम की अक्कासी अपनी शख्सी जिंदगी से करने वाले हों। और आज का यह कलाम मुझ समेत हजारों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हम कुछ कर दिखाएं, अपनी जिंदगी में चेंजेस और तब्दीली लाएं, और यही आप हमारी जिंदगी से चाहते हैं। खुदावन हमारे साथ जितने भी अलील या जरूरतमंद भाई और बहनें मौजूद हैं, या वो जो डिप्रेशन की दलदल में है, खानदानी प्रॉब्लम्स में मुब्तला है, यस्सु के नाम से अहबाब अपना हाथ उन पर बढ़ाइए, रिहाई, मखलसी और छुटकारा दीजिए और अपने नाम को
ان کے وسیلے سے جلال اور عزت بخشیے۔ شفا آپ کے لوگوں کو ملے، بحالی، صحت، تندرستی اور اطمینان، کہ آپ کا جلال ان زندگیوں سے ظاہر ہو سکے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین این آمین۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔